Welcome to our channel. Dr. Praveen Gupta presents Oncology Nursing Conclave 2026. नमस्कार। गुड मॉर्निंग। थोड़ा जोर से, सब सो गए? जैसा कि प्रशांत सर ने बताया कि बैचलर्स देन मास्टर्स देन सुपर स्पेशलिटी, तो आप लोग सब सुपर स्पेशलिस्ट हैं। यू ऑल आर ऑन्को नर्सेस, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रंटलाइनर्स। आप सारे ऑन्कोलॉजी में हैं, तो आप लोग ऑलरेडी सुपर स्पेशलिस्ट हैं। And you all know with knowledge comes great responsibilities. ऐसा ही नहीं कि बस डिग्री सैलरी पैकेज बढ़ाने के लिए है, बट अगर नॉलेज है तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल जो भी काम आपको दिया जा रहा है। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद टुडे ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज। उनमें रोल ऑफ नर्सिंग केयर, इट्स इमरजेंसी एंड यू हैव टू बी लर्न, यू हैव टू नो the emergencies, and जब knowledge है then only you can deal with emergency. मेरे जो slides हैं, it will include oncological emergencies, then the nurse's role in early assessment, nursing interventions, patient and family education, and challenges faced by nurses. What is oncological emergency? It's a life-threatening condition caused by cancer, metastasis, or its treatment. इसको फर्दर क्लासिफाई किया है मेटाबॉलिक, हेमाटोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल। व्हाट आर द मेटाबॉलिक इमरजेंसीज? सबसे कॉमनली वी डील विथ हाइपरकलीमिया, दैट इज पोटेशियम का लेवल मोर इन द बॉडी, हाइपरकैल्सीमिया, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। देन कम्स द हेमाटोलॉजिकल इमरजेंसी, उसमें है फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, एंड देन स्ट्रक्चरल इमरजेंसीज. These are spinal cord compression, SVC syndrome, and increased ICP. While we are dealing with the oncological emergency, it's always a team which works. It's a multidisciplinary team. एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता. It has to be a team. And the team includes oncologists, oncology nurses, pharmacists, radiologists, and critical care team. What are the common oncological emergencies we are dealing? The most common oncological emergency क्या देखते हैं हम लोग? Most common oncological emergency क्या है? इट्स फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। हर किसी को GCSF हम दे रहे हैं, हर किसी को बोलते हैं थर्ड डे अगर आपको बुखार आता है, आप बस एक CBC कराइए, लोकल डॉक्टर को दिखाइए, देन कॉन्टैक्ट अस। अगर CBC ठीक है तो हमारा 90% टेंशन खत्म। द मोस्ट कॉमन इज एंड डेडली इज फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया. Next comes tumor lysis syndrome, hypercalcemia of malignancy, superior vena cava syndrome, spinal cord compression, and malignant effusions. What is febrile neutropenia? There are two terms, fever and neutropenia. If somebody is having fever, fever कितना होना चाहिए? या तो single episode of fever that should be more than 38.3 degree Celsius, or 38 degree है तो it should be sustained for more than 1 hour. ज्यादा है तो एक एपिसोड, बस 0.3 डेसिमल कम हुआ तो 1 घंटे तक बुखार रहना चाहिए. न्यूट्रोपीनिया, व्हाट इज न्यूट्रोपीनिया? आप में से कोई बताए न्यूट्रोपीनिया क्या है? Decreasing of the ANC. न्यूट्रोपीनिया इट्स नॉट अबाउट WBC. WBC टोटल में कम होगा मगर न्यूट्रोफिल्स कम है. वी ऑलवेज कैलकुलेट ANC, दैट इज एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट. न्यूट्रोपीनिया कब कहेंगे? फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया. न्यूट्रोपीनिया के ग्रेडिंग 1, 2, 3, 4, बट फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया में न्यूट्रोपीनिया का लेवल कितना होना चाहिए? इट्स अबाउट लेस देन 500 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर और लेस देन 1000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये और कम होगा, लेस देन 500 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होगा. To manage the febrile neutropenia, the most crucial time is the 1 hour clock. First 1 hour is the most crucial hour. It includes assessment of patient, उसके vitals देखो, उसको signs of infection है कि नहीं देखो, alert the doctor, fever आ रहा है, कोई signs of infection है, अब डॉक्टर को बताए. Then the third is assess the IV line, collect the common metabolic जो भी CBC KFT वाला, and with blood culture. Then you have to start with antibiotics, and the goal, lastly, the final step is
watch for the signs of sepsis. So golden rule is the first 1 hour, and you have to start with antibiotic in the first 1 hour. It starts with assessment of patient, alert the doctor, collect the samples, send for blood culture, start antibiotic and monitor closely. Next is tumor lysis syndrome. Tumor lysis, जब ट्यूमर का लाइसिस हो रहा है, टूट रहा है, when we start with chemotherapy, it kills the cancer cells. कैंसर सेल्स का डेथ होता है, सेल्स से बहुत सारे आयंस रिलीज होते हैं. दीज आर पोटेशियम, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये तीनों बढ़ते हैं. एक कम होता है, दैट इज कैल्शियम. बॉडी में आयंस का डिसबैलेंस होना इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम. ये फर्दर क्या कर सकता है? रेनल डैमेज, हार्ट अरिथमियाज, क्रैम्प्स एंड सीजर्स. इसमें नर्सिंग फ्लो क्या है? द रूल इज एडिक्वेट हाइड्रेशन. It can be managed with adequate hydration. जो भी fluid rate डॉक्टर ने suggest किया है, उसी rate से we should start the fluid, and urine output has to be maintained for more than 100 ml per hour. The next step is to monitor the laboratory values. जो बिगड़ गए हैं values, वो और खराब हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, क्या है? Cardiac assessment, you have to continuously see, ECG monitoring has to be there कि नया arrhythmias हो रहा है कि नहीं. Next is renal function. Strict input-output maintenance is the most important point in tumor lysis syndrome. And whatever medications has been written by doctor, it has to be given with the adequate doses and timing. Common drugs जो tumor lysis syndrome के लिए use होते हैं, कौन-कौन से हैं? Allopurinol, Rasbericase. Next is hypercalcemia. When the blood level of calcium increases, that is more than 10. जितना बढ़ेगा उतना सीवियर है, बट बेस लाइन इज 10. अगर 14 जाता है, इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी. तो इसके साइंस क्या क्या है? कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, किडनी डैमेज, मसल वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन. ये सारे साइंस आप लोग पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप एसेस कर सकते हैं कि जो भी हम मेडिकेशंस दे रहे हैं उससे बेहतर हो रहा है, खराब हो रहा है. इसमें नर्सिंग फ्लो क्या है? हाइपरकैल्सीमिया, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इनका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इज प्रॉम्प्ट हाइड्रेशन. वट एवर फ्लो ऑफ फ्लूइड जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, यू हैव टू डू दैट. मतलब यू हैव टू मेंटेन दैट हाइड्रेशन, एंड यू हैव टू मेंटेन अ स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट चार्ट. कार्डियक मॉनिटरिंग इज एसेंशियल, एंड द जो लेवल्स है कैल्शियम के, फॉस्फेट के, क्रिएटिन, इनके रेगुलर मॉनिटरिंग, उसको देखना एंड इंटिमिडेट द डॉक्टर्स. व्हाट आर द मेडिकेशंस वी आर यूजिंग फॉर हाइपरकैल्सीमिया? मोस्ट कॉमनली वी आर यूजिंग डेक्सामेथासोन, जोलेड्रोनिक एसिड, कैल्सिटोनिन, डायूरेटिक्स, एंड एज वेल एज कॉन्स्टिपेशन होता है तो लैक्सेटिव्स वी आल्सो प्रेस्क्राइब. नेक्स्ट सिंड्रोम इमरजेंसी इज सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम. सुपीरियर वेना केवा, जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा अगर कंप्रेस हो रहा है तो वो क्या इमरजेंसीज क्रिएट करता है. तो इसको कैसे पहचानेंगे? ये पेशेंट का चेहरा पोजीशन देख के ही हम पहचान सकते हैं. देयर विल बी फेशियल स्वेलिंग, वेनस प्रोमिनेंस, आर्म स्वेलिंग, पेशेंट विल बी डिस्निक. ये 4 चीजें उसको देख के हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम. इसमें नर्सिंग क्या क्या है? एलिवेट द हेड एंड, मॉनिटर द ब्रीदिंग, चेक फॉर एनी स्वेलिंग ऑफ द फेस और साइनोसिस. हमें अपर लिम में आईवी कैन्यूला या बीपी कफ नहीं लगाना है. प्रिफर्ड इज द लोअर लिम. एंड इसमें पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में रहता है, सैचुरेशन कम रहता है, तो ऑक्सीजन फ्लो भी मेंटेन करना है. नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन. यू ऑल नो द क्या क्या पार्ट्स है. सर्वाइकल है, थोरासिक है, लंबर है, सैक्रम है, कॉक्सिक्स है. ये वर्टिब्रल बॉडीज है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है. Anything, any tumor, any disease, any metastasis that is compressing the spinal cord, it's spinal cord syndrome. इसके साइंस क्या हो सकते हैं? लाइक लिम्ब वीकनेस है, किसी को नमनेस हो रहा है, टिंगलिंग हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, ब्लैडर बाउल इनकॉन्टिनेंट है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग है. दीज साइंस कैन लीड अस टू नो वेदर इट्स अ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन और नॉट. इट्स ऑल्सो मेडिकल इमरजेंसी, एंड द नर्सिंग केयर इज द की ओवर हियर. यहाँ पे आप लोगों का क्या मदद है? ये है कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट. आप लोग ये देख सकते हैं कि मसल स्ट्रेंथ कैसा है, सेंसरी फंक्शंस है कि नहीं, रिफ्लेक्सेस प्रॉपर है कि नहीं, पैरालिसिस हो रहा है कि नहीं, और सबसे ज्यादा लॉग रोल
रोलिंग टेक्निक जो प्रॉपर पोजिशनिंग के लिए जरूरत है, 4 लोग चादर पे रख के एक साथ पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड आपका स्टेबल रहे, सडन मूवमेंट्स ना हो और उसमें फर्दर इंजुरी ना हो. What are the medications we are commonly using for spinal cord compression? It's steroid, dexamethasone most commonly used drug है. Further उसमें पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो you have to give a proper analgesic and anti-inflammatory drugs. इसमें इमरजेंसी साइंस क्या क्या है जो फ्रंट लाइनर है वो पहचान सकते हैं. दीज आर, अगर वीकनेस बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग वीकनेस, ब्लैडर बाउल कॉन्टिनेंट नहीं है या उसको फर्दर पेन में इंक्रीज हो रहा है, दीज आर द इमरजेंसी साइन एंड यू हैव टू रिपोर्ट टू डॉक्टर. व्हाट आर द सपोर्टिव केयर यू कैन प्रोवाइड? यू हैव टू दैट यू ऑल नो कि पैरालिसिस होगा तो प्रेशर सोर्स होगा, तो प्रेशर सोर्स नहीं होने देना है, एयरवे ब्रीदिंग मेंटेन करना है एंड इमोशनल सपोर्ट्स. नेक्स्ट इज इंट्राक्रेनियल, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. इसके जो मतलब ब्रेन के अंदर ज्यादा प्रेशर होना, इसके अर्ली साइंस क्या है? इट्स हेडेक, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस. इन साइंस से हम पहचान, जो हमारे पेशेंट ब्रेन मेट्स के आते हैं या ब्रेन ट्यूमर्स के आते हैं, दे मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट विद दीज साइंस लाइक हेडेक, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस. उसके लेट साइंस क्या हो सकते हैं? इसका एक कुशिंग ट्रायड है नाम, जिसमें बीपी बढ़ता है बट पल्स रेट कम होता है, ब्रीदिंग इज इरेगुलर. व्हाट आर द डेंजर साइंस फॉर रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर? कॉन्शियसनेस, पेशेंट अनकॉन्शियस होता जाएगा, पीपल डायलेट होगा या फिर ब्रेन हर्निएशन. इसमें नर्सिंग रोल क्या है? यू हैव टू एलिवेट द हेड. व्हाट आर द ड्रग्स यूज? लाइक मैनिटॉल, हाइपरटोनिक सलाइन. आपको ऑक्सीजन वेंटिलेशन मेंटेन करना है और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट का चेक करते रहना कि ये फर्दर डिटोरिएट हो रहे हैं कि नहीं, लाइक उनका कॉन्शियसनेस कम हो रहा है कि नहीं, उनके प्यूपल्स डायलेटेड है कि नहीं, वो रेस्पिरेशन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं. And the next emergency is bleeding emergencies, जो it's not for only medical oncology, even medical, surgical, radiation, तीनों के ही नर्सिंग स्टाफ बहुत कॉमनली इसको फेस करते होंगे. हमारे पेशेंट ऑलरेडी लार्ज वूंड्स, फंगेटिंग वूंड्स के साथ आते हैं एंड एवरी डे वी सी कि सबका स्टेज 9-10 हो रखा है. इट्स नॉट अबाउट स्टेज 4 ओनली. तो अगर मैसिव ब्लीडिंग है, व्हाट आर द कॉजेज? मोस्ट प्रॉब्ली इट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर ट्यूमर इन्वेशन के चलते ही है. इसमें नर्सिंग केयर क्या है? फर्स्ट ऑफ इट स्टार्ट्स विद जेंटल प्रेशर. जहां से भी खून निकल रहा है, यू हैव टू पुट अ प्रेशर. यू हैव टू अवॉइड द एडेसिव ड्रेसिंग्स एंड जो लिम्ब अफेक्टेड है उसको एलिवेट करना है. और वाइटल साइंस जो है वो आपको देखते रहना है कि बीपी, पल्स एंड सैचुरेशन ठीक है कि नहीं, विद जेंटल प्रेशर एंड नॉन एडेसिव ड्रेसिंग. सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नर्सिंग स्टाफ की है, इट्स द असेसमेंट कि ये इमरजेंसी है कि नहीं. ये आपको कैसे पता चलेगा? वाइटल्स, बीपी, पल्स, यूरिन आउटपुट, ऑक्सीजनेशन, टैकिपनिया, दीज साइंस, ये जब भी पेशेंट आप रिसीव करते हैं या आप मेजर करते हैं, यू कैन नो कि इनमें कुछ चेंजेस है कि नहीं. नेक्स्ट इज पेन. उसका पेन बढ़ रहा है कि नहीं. न्यूरोलॉजिकल साइंस, पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं, उसको सीजर्स हो रहे हैं कि नहीं, उसका रेस्पॉन्स कैसा है. And fluid balance, whether patient is dehydrated or not, and you have to check the laboratory values regularly. जब हमने assessment कर लिया, then what will be the nursing interventions? ये पेशेंट रैपिडली डिटोरिएट करते हैं तो आपको रैपिड असेसमेंट करना होगा. जो भी चीज खराब है, लाइक ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन लगाइए, बीपी कम है आईवी लाइन एक्सेस कीजिए. अगर आपको लग रहा है फीवर है तो विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स यू हैव टू एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक्स. और ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स द फैमिली एंड पेशेंट एडुकेशन. जब पेशेंट हमारे पास से यहाँ जाते हैं, व्हाट ऑल एडुकेशन यू शुड गिव कि आपको ये चीजें इमरजेंसी है कैसे पहचाननी है. फीवर है कि नहीं है तो आप रिपोर्ट कीजिए. हाइजीन मेंटेन करना है, चाहे वो पिक लाइन साइट हो चाहे सेंट्रल लाइन का साइट हो, उसमें कोई रेडनेस है कि नहीं, इन्फेक्शंस है कि नहीं, जो मेडिकेशंस हम दे रहे हैं वो प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं, और डिहाइड्रेशन है, थोड़ा सा डायरिया वॉमिटिंग हुआ है, बीपी कम है, तो दे शुड रिपोर्ट टू द डॉक्टर. एंड एज यू ऑल नो कि नए नए ड्रग्स, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी आर डेली दे आर कमिंग. तो इसमें आप कैसे इन चीज़ों के जो साइड इफेक्ट से कैसे पहचानेंगे? इट्स विथ योर वर्क. अगर आपको हॉस्पिटल में चल रहा है तो यू विल नो, एंड फर्दर यू कैन गो फॉर कॉन्फ्रेंसेज या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज में यू कैन अपडेट योर सेल्फ. व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर आवर नर्सेज?
ये पेशेंट रैपिडली डिटोरिएट करते हैं, दे हैव द हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन, दे आर ऑलरेडी इमोशनली बर्डन, एंड बिकॉज द treatment protocol is very complex, you have to learn every day and update yourself every day. Lastly, I will come to the conclusion. We all know that oncologic emergencies is life-threatening, but it's manageable. And early recognition is the key. Nurses play the vital roles in detection and monitoring, and prompt nursing care can save the lives. These are the references, and thank you. Thank you very much. Thanks for attention. For more educational content, subscribe the channel.